हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं श्रीनाथ बुरा, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 29 लिया है गेट डीए के एग्जाम में, गेट डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम में। तो सीधा उन्हीं से बात करते हैं कैसे उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही, क्या क्या चीजें उन्होंने फॉलो की, और सारी बात जो है वो उनसे स्टार्ट करते हैं। क्योंकि चैनल का नाम जैसे आपको पता है कि गेट्स मेशर्स है, तो स्मैश करना है गेट के एग्जाम को। और इन्होंने तो इतना अच्छे तरीके से एग्जाम क्वालिफाई किया है, इतना अच्छे तरीके से एग्जाम को स्मैश किया है, ऑल इंडिया रैंक 29 लेना, सच अ एक्सेप्शनल अचीवमेंट। तो लेट्स बिगिन द कॉन्वर्जेशन विद श्रीनाथ। तो हाय श्रीनाथ। हेलो सर। तो आपकी एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। हाँ। हाँ। सो हाय एवरीवन, आई एम श्रीनाथ, currently pursuing my bachelor's in Andhra University, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, in computer science and engineering. So even it's computer science and engineering, I am very much interested in machine learning and deep learning. Have attempted this paper, दैट्स व्हाई यू and I am चूज currently. गेट डी एग्जाम ना? Yes, yes. हम्म। And currently, I am working as an intern. ओके। Uh, Currently, I am in Hyderabad. इन विच कंपनी यू आर वर्किंग एज ए इंटर्न? So I am working at Darwin Box Solutions Limited. Okay, so there you are working as a like data science field, AI field, or what is the technology you are working in? It is related to data. So data analysis and kind of thing you can select. Okay. API programming is also included. Hmm. Srinath, you are in last year, na? I think you are in last year. Yes, yes, yes. Okay, In okay, my okay. eighth semester. In your eighth semester. So I just want to know, even not me, my students also, all the aspirants of GATE exam, they want to know the preparation strategy. What preparation strategy you follow, like your study routine, आपका रूटीन क्या था स्टडी का, और क्या आपने स्ट्रेटजी फॉलो की, क्या प्लान आपने किया इसका, थोड़ा सा इसका एक जरूर स्टूडेंट्स को बताओ। Uh, Definitely. In my opinion, and as many of students say, I think there are two kinds of people. First one are early birds, and the one is and the category is night owls. So I'm an early bird, so I wake up early in the morning, but I can't stay up night. My routine starts at 5 a.m. in the morning. ओके, वाओ। I wake up at 5, and then I use it to study till 8 o'clock because I have to attend the office. Like I'm working, right? So I have to go to office from 10 to 7. हम्म। My strategy is it to be like after coming from office in the night, I use it to give a mock test for 3 hours. I will complete the mock test by 10:30, 10:40, and then sleep at 11, and then again wake up at 5. So then I use it to check the result and what questions and what all I have made हम्म। mistakes. हम्म। So this is the planning for mock test and all, like in the last 1 month, 1.5 month. हम्म। Before that, I use it to like say complete a unit or two in the night, and then make a short notes of it in the morning. ओके, तो डेली बेसिस Because पे लाइक यू that way, like. फॉलो द सेम प्लानिंग, डेली बेसिस पे यू फॉलो द लाइक यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन द अर्ली मॉर्निंग। एंड व्हेन यू स्टार्टेड योर Yes. प्रिपरेशन, लाइक इन विच मंथ यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, गेट प्रिपरेशन? So actually, frankly speaking, I don't have the idea of giving it before IASC announced this DA paper. ओके, सो यू वर So I अवेयर act. अबाउट गेट एग्जाम बट यू डिडंट प्लान लाइक कि मैं ये गेट Yes, yes, एग्जाम दूंगा। exactly. ओके। हम्म। So I plan just seeing this combination of Python, machine learning, AI, and these all. तो वी कैन But से, I actually. हाँ, we can say in August or September, like you started your Yes, 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 yes. And I ended up giving both of the papers, DA and CS, but my priority is DA. okay. So you first check the syllabus, I think. You check the curriculum syllabus Yes, of yes, yes, GDA. exactly. Okay. तो वहां पे Yes. तुम्हारा थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा बना, बिकॉज मे बी यू सी कि पाइथन है, मैथमेटिक्स है, डीबीएमएस है, हाँ, हाँ, एमएल है। तो आई थिंक आपका ऑलरेडी थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट था पहले ही। तो दैट्स व्हाई यू हाँ. चूज कि यार मेरे को गेट डीए पे ज्यादा फोकस करना है रादर देन गेट सीएससी। Yes, yes, exactly. तो व्हाट इज योर स्कोर इन गेट सीएससी?
So GATE CS, I got 1040 rank. Also good. So the score is around 689, 689, 673, I think. ओके ओके ओके, दैट इज ऑल्सो गुड, बट गे डीए में तो लाइक फिनोमिनल अचीवमेंट आपकी है, क्योंकि 29 रैंक लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है यार। क्योंकि वही होता है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यार, जब हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि यस यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द गेट एग्जाम, तो स्टार्टिंग में होता है कि यार गेट क्वालिफाई करो, यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई द गेट एग्जाम। Yes, yes. देन हम उनको प्रिपेयर करते हैं कि यार अब आपको 40 मार्क्स के बाद लेके जाना है, कि 40 45 तक। फिर प्रिपेयर करते हैं उनको, मतलब एक तरह से काइंड ऑफ उनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप अब 50 मार्क्स तक लेके जा सकते हो, 60 तक लेके जा सकते हो। बट यू गॉट Yes, yes. 75 मार्क्स, तो यार ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मेरे को स्पेशली इसका थोड़ा सा बताओ, और स्टूडेंट्स भी डेफिनेटली इसको जानना चाहते हैं कि सर गेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, 40 45 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हाउ टू रीच अप टू 70 या 75 मार्क्स, वहां तक कैसे, मतलब क्या स्पेशल करना पड़ता है, क्या एक्स्ट्रा करना पड़ता है, बस ये थोड़ा सा एक जरूर मेरे को बताना। So focusing on mistakes rather than the actual subject is important, in my opinion. हम्म। Firstly, giving mock test is very important. हम्म। The only strategy that I followed during my mock test and all is give a mock test, note down the mistakes, हम्म। and revise it. Like going through the syllabus 2 3 times is not actually mandatory, in my opinion. So, हम्म। going through syllabus for 2 3 times, I mean, I choose noting down my mistakes and again reiterating the logic that I have missed out is हम्म। important. So, rather than that option, the first one I have told, second one is more important. So focusing on mock test is very, very important. हम्म। And then making a strategy. So as I have mentioned earlier, being an early bird or night owl, like choose one of it. हाँ, ठीक है। So consistency is the most important thing. So doing a day of 10 hours work and then not doing it for 2 or 3 days is not good. In my opinion, it should be consistent every day, bits and pieces rather एवरी डे than यू हैव chunks. टू गिव टाइम। Yes, exactly. And what resources you followed, like what are the resources you followed, books, online videos, what are the resources, all the types of resources you followed? Yes, yes. So firstly, I have to thank my professor. So my professor Vali Kumari. So she actually covered 60% of the GATE DS syllabus, like in semesters. Okay, So great. most of the subjects in these paper were taught by her, and she Hmm. was really amazing. Like I actually used her notes and then Hmm. some videos for AI from Gate Smashers and probability from Gate Smashers. And then I Hmm. also used some textbooks. Hmm. I mean the preferred ones in my university itself. Okay. And then for mock tests and all, also I have followed like depth of ML. We are having mind matrix and many others. Hmm. So, firstly, and I mean, I want to make this point clear that students may think buying a course and going through all that is enough. Hmm. But in my opinion, buying a course is equally mandatory, but going through the available resources is also mandatory. Hmm. Because if someone buys the course but didn't complete even half of it, there is no use of it. बिल्कुल, exactly. So you're So obviously you got a very good rank. So your parents, your teachers, even your institute also, they must be proud of you. yes, yes. तो what is actually their views? उनके क्या views थे जब उनको पता लगा कि हमारे student के इतने अच्छा rank आया है? So उनके views क्या थे? So they are really very happy, and actually they wanna felicitate me during the department day, but I missed out on it, like because I'm having no leaves. Oh, okay. So you must Uh, attend this. yes, yes, exactly. I tried to attend, but I actually completed my leaves for gate exam and all. Like I have completed my Okay. leaves. Hmm. And then like they're actually very happy because it's like in last few decades our university didn't get any below 100 rank in any stream. ओके, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, So फिर इंस्टीट्यूट के लिए भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अच्छा नाम हो जाता है कि यार हमारा स्टूडेंट yes, जो है yes. वो इतना अच्छा रैंक लेके आया है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो लाइक आई जस्ट वांट टू नो श्रीनाथ कि ठीक है, आपने गेट की प्रिपरेशन लाइक अगस्त सितंबर में आपने स्टार्ट की, तो उससे पहले हाउ वाज यू इन मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे पहले आपका क्या उसमें इंटरेस्ट था, पाइथन में, और आपका कितना, मतलब आप उससे पहले भी टाइम देते थे मशीन लर्निंग एआई वगैरह में?
सारी चीजों में? Yes, my entire time goes in machine learning and deep learning. ओके, सो आपका ऑलरेडी पहले एक So, अच्छा बेस था, लाइक यू वी कैन से कि like आपका for ऑलरेडी एक ML बेस। and AI, I'm having the base. ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर लाइक, उसके बाद तो फिर आपका एक मैथमेटिक्स का पोर्शन था और थोड़ा हाँ, डीबीएमएस का पोर्शन था, वो तो आपने फिर yes, ऑब्वियसली yes, गेट्स मेशर से और इवन अपने पुराने नोट से भी आपने वो सारी चीजें कवर अप की। yes, yes. हम्म। तो ऐसा तो नहीं है कि लाइक सारी चीजें बहुत इजीली हो जाती हैं जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हम लोग फेस करते हैं ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ कि मेंटली भी हमें बहुत चीजें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं कि यार ये चीजें समझ नहीं आ रही, मैं इनको अच्छे से Yes, समझ yes. नहीं पा रहा, या कई बार ये भी होता है कि मैं एक चीज को अच्छे से लाइक मेरे को ग्रास्प कर ली चीजें, बट एक डाउट रहता है, एक फियर रहता है कि मेरे को एग्जाम में वो चीजें याद रहेंगी या नहीं। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ चैलेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन। सो हाउ यू ओवरकम दीज चैलेंजेस, वो कहीं ना कहीं एक रहता है स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर उन चीजों को हम कैसे फेस करें, कैसे ओवरकम करें। So according to me, there were two types of challenges faced by students. First is external and second is internal. ओके, So तो यू external. आर टॉकिंग टोटली अबाउट लाइक, जैसे मशीन लर्निंग में हम लोग टोटल टोटल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं ना कि हाँ ऐसे होता है या फिर तो आपका तो बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं प्लानिंग ऑलरेडी की हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है यार कि आप अपने खुद के uh, एक्सपीरियंस से सीख रहे हो अच्छे से, है ना? हाँ वही तो because हाँ। even in that learning from someone like even if your teacher is best of best if the student doesn't want to learn there is no use of it so I think हाँ, self learning is the best thing. या डेफिनेटली तो वही चीज हम मशीन So लर्निंग में भी ये चीज बोल रहे हैं ना, री में कि ठीक है सुपरवाइज हो गया, हाँ अनसुपरवाइज हो गया, बट री में मतलब वो खुद से भी अब लर्न करे ना, सेल्फ एक्सपीरियंस ले। explore and हाँ, exploit. बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली तो क्या चैलेंजेस आप बता रहे थे, एक बार जरूर बताओ चैलेंजेस का। So coming to external factors like being in 20s and all that, we'll be having so much stuff to enjoy, say mobile phone, हाँ। going for shopping malls and many more. So I'm not against to them, but I feel like we have to plan everything. हम्म। So for the external factors and all, like we have to give our time. Say, if I plan to study 6 hours a day or 5 hours a day, I have to do that. So I have planned it 5 to 8 in the morning, 7 to 10 and a half in the night. हम्म। So if any 1 hour goes out, say from 9 to 10:30, I'm going for a family dinner out. So हम्म। I'm going out for family dinner. Then I have to make up this time in between. Like say in the weekend, हम्म। I'll give 1 more hour, or say I'll do two more hours. So for these external factors, like all those, we have to manage the time. Basically, हम्म। planning. Like we have to plan very well that even if 1 hour goes out, we have to get that 1 hour in again. हम्म, definitely. And then for mobile phone, as we all are aware, we are having these focus modes and all, right? So, हम्म। for example, my phone doesn't let me see Instagram more than half an hour a day. वाओ So तो that way, दैट I इज द think, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ना, कि यार टेक्नोलॉजी भी yes, यूज कर रहे हो लेकिन उसमें भी हाउ यू कैन लिमिटाइज योर सेल्फ, कि आप आउट yes, ऑफ फोकस exactly. ना चले जाओ चीजों में कि जो आपका एक्चुअल में एम है। क्योंकि आज के टाइम पे एज यू आर सेइंग कि सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस है जितना भी हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, बट उनके ऐसा नहीं है कि वी कांट लाइक हम टोटली अवॉइड नहीं कर सकते, यू कांट अवॉइड हंड्रेड हाँ, परसेंट ऑफ इट, बट हाउ यू कैन चैनलाइज योर एनर्जी, आप उसको कैसे yes, लिमिटाइज करके और अपना पूरा फोकस अपने गोल्स के ऊपर कि क्या आप अपने आप को देखना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि लाइक उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंसी जो है हाँ, वो हाँ, डेफिनेटली डेली लानी पड़ेगी। तो ये बड़ा बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया कि लाइक स्टूडेंट जितने भी एस्पायरेंट्स हैं कि वो अपनी चीजों को ठीक है डेली बेसिस पे यूज करें, हम ये नहीं बोल रहे कि यार बंद कर दो यूज करना सोशल मीडिया, नहीं, आप करो, लेकिन पहले अपना जो डेली का गोल है वो अचीव करो, उसके बाद आप उसको थोड़ा सा लाइक अपने मूड को थोड़ा लाइट करने के लिए आप उन चीजों को एक लिमिट टाइम तक जो है वो यूज कर सकते हो, है ना? ये कहीं ना कहीं एक yes, अच्छा yes. पॉइंट, हाँ। तो लाइक श्रीनाथ आप बोल रहे हो कि लाइक आप एज ए इंटर्न यू आर ऑलरेडी वर्किंग, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि सर आई एम वर्किंग इन अ पर्टिकुलर कंपनी, या आई एम वर्किंग एज ए इंटर्न ऑल्सो, या फुल टाइम में वर्क कर रहा हूँ, या मैं कॉलेज में मेरे को 9 to 5 जाना पड़ता है, ये चीजें कहीं ना कहीं रहती हैं। तो बैलेंस कैसे बनाते हो, हाउ यू विल बैलेंस कि मैं अपना इंटर्नशिप पे भी ध्यान दे रहा हूँ, गेट प्रिपरेशन पे भी ध्यान दे रहा हूँ, तो उस चीज को हम बैलेंस कैसे बनाएं और स्टूडेंट्स भी उस चीज को कैसे बैलेंस बना के रखें? कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो निकल के आ गया मेरे को, जो समझ में आ रहा है कि अर्ली बर्ड हो तो Yes, सुबह उठ के आपने काफी पहले ही अपना
चेकलिस्ट कंप्लीट कर लिया कि कुछ मैंने 3 घंटे लगा के, तो और एक्स्ट्रा जो स्टूडेंट है कि वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट जो है वो बताओ यार कि कैसे बैलेंस बना के रखें अपना दोनों चीजों को। So basically, we hear people saying out of the box thinking, but हाँ। I prefer in the box thinking because when you're doing your internship, focus on it. Like 10 to 7, it's preset. हम्म। You have to do your works. Say 9 to 5 college, you have to do your works. हम्म। But after that, the entire time goes in your gate preparation. हम्म। I mean, if you are sitting to study, your entire brain should be here. There are zero distractions. I mean, हम्म। so we have to balance the time as you mentioned. Like balance is very much important. How हम्म। to balance? I mean, differs from person to person. हम्म। So in my view, like as I mentioned, I will just turn it off. Like if I'm on my internship during 10 to 7, I don't think about my gate. Seriously, I don't हम्म। think about my gate at all. After coming to home, the time is mine. I want to invest it in gate. ग्रेट। दैट इज So दैट इज वेरी having that इंपॉर्टेंट। quick switches is important. I mean, हम्म। coming to home, relaxing for an hour, for 2 hours doesn't make much sense because I'm losing my time over there and I don't have much time. So, हम्म। like give value to your time firstly and then plan it. Srinath, in one of my video, I explained the definition of sincerity in one of my old video. Like, what is the meaning of sincerity? And you told the Yes, exact definition of sincerity कि जिस टाइम पे आप जो काम कर रहे हो, like you are 9 to 5, you are working as a intern और job आप कर रहे हो या कॉलेज में हो, then totally focus on that particular thing. Don't think about gate exam. और जब आप yes, इवनिंग में आके या मॉर्निंग में whatever टाइम यू चूज कि आपने कब पढ़ना है, जब आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो फिर आप जॉब की या किसी पर्टिकुलर और चीज के बारे में मत सोचो। मतलब जिस टाइम पे जो काम कर yes, रहे हो वही करो, फोकस्ड होके करो, डिटर्मिन्ड होके करो, तो ऑब्वियसली आप अच्छा रैंक अच्छा जो है वो कर ही सकते हो, है ना। ये चीज है। और आपने एक अच्छा एग्जाम्पल भी सेट की है क्योंकि स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं लगता है दे लाइक पीयर टू पीयर लर्निंग। क्योंकि कई बार मैं चीजों को बोलता हूँ एज ए टीचर, लाइक 100 में से होते हैं कि 2 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं या 10 स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छे से इन चीजों को अच्छे से सुनते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। लेकिन जब वो आपसे सुनेंगे ना ये सारे चेंज, और जब उनको पता लगेगा कि हाँ यार श्रीनाथ ने एक बहुत अच्छा अचीवमेंट लिया है, तो वो कहीं ना कहीं इसको एज ए इंस्पायरिंग जर्नी जो है वो फॉलो करेंगे। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है और आपके लिए भी कहीं ना कहीं है यार कि फ्यूचर में, और ऑब्वियसली आप फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में अब आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हो इन फ्यूचर, क्योंकि गेट में तो आपने एक अच्छा रैंक लिया ही है, तो ऑब्वियसली आपको आई थिंक आप किस पे फोकस कर रहे हो अब, आईएससी बेंगलोर या आईआईटी, कहाँ पे आप अपना। yes, yes. So I am thinking of getting into IISc Bangalore or IIT आईआईटी, Madras. आईआईटी मद्रास, Uh, ओके। yes, ठीक है। yes, और लाइक इन परस्यूइंग एमटेक, yes, yes. MTech. pursuing MTech MTech in AI. in AI. Okay, okay, okay. Yes. And what is your goal in your life? Like, okay, now the path is clear कि ठीक है मेरे को अभी आईआईसी बेंगलोर या फिर आईआईटी मद्रास दोनों में से एक जगह पे जाना है, और फिर उसके बाद लाइक आफ्टर 5 years वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ, क्या गोल्स है आपके लाइफ में? So actually, I wanna do a lot of work in machine learning, Oh, firstly. great. So be it my job, be it research or anything else, I wanna do a lot of work in it. So Hmm. basically, what I am thinking is after doing my MTech in IISc or IIT Madras or say any good institute, Hmm. I wanna do my job like say good job as an ML engineer or like that for say 8 to 10 years, and then I actually wanted to make a startup. Like I want to build my own startup. Great. So these 8 to 10 years, I will be working and also gaining knowledge and gaining experience in how Yeah. to Yes. manage Yes. people, Yes. how to Hmm. work, what should I do. So Hmm. these 8 to 10 years, I want to invest in that way, and then I want to establish a company and Yeah. then uh, build something more better. Good, good, good. Maybe you will get within 4 or 5 years also. That is also possible. And Yes, yes, yeah, yes, and I I just want to ask one last question, Srinath, क्योंकि लास्ट ईयर से ना फ्रॉम 2023, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 2023, लाइक चैट yes, जीपीटी, yes, बार्ड, अभी डेविन एआई के बारे में बात हो रही है, मतलब ये पूरा साल जो है इवन 2024 ऑल्सो, ये अभी पिछले एक साल से एआई मशीन लर्निंग इसी के बारे में सबसे ज्यादा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी इनमें सबसे ज्यादा हो रहा है, yes, yes. स्टार्टअप्स में भी सबसे ज्यादा फंडिंग इन्हीं में हो रही है, और इवन जितने भी टॉप लेवल के जो लोग हैं वो भी सारे कहीं ना कहीं इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं।
मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है यार कि जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक स्टूडेंट्स नॉट फ्रॉम बीटेक और बीटेक सीएससी और दीज बैकग्राउंड, लाइक अ स्टूडेंट हु इज इन 10th क्लास ऑल्सो या 11th क्लास, Yes, yes. वो क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए? क्या मशीन लर्निंग में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या रोड मैप उनको फॉलो करना चाहिए? लाइक कि बिगनिंग से ही वो अपने आप को अभी से प्रिपरेशन करें, क्योंकि मैं इसके बारे में इसलिए सोच रहा हूँ। मैंने 2010 में, मैंने 2010 में अपना बीटेक कंप्लीट किया है। और उस टाइम पे भी Oh, जो प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोग, एक फियर रहता था, एक डर रहता था ना, आज भी स्टूडेंट्स के दिमाग में वो रहता है एक फियर कि प्रोग्रामिंग नहीं सर, और कुछ भी करवा लो बट प्रोग्रामिंग मत करवाओ, ये कहीं ना कहीं एक रहता है। तो yes, ऐसा ना yes. हो कि आने वाले 10 to 15 ईयर्स के बाद स्टूडेंट्स भी फिर वही सोचें कि अब मैं एआई में ऐसा क्या करूं या मशीन लर्निंग में ऐसा क्या करूं। तो मैं चाहता हूं कि एक रोड मैप आप, क्योंकि आपने एक अच्छी अचीवमेंट की है, तो आप एक बताओ कि यार रोड मैप क्या होना चाहिए बिगिनर्स के लिए, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। Yes, yes. So coming to that point, we all know that we are having probability, the basics of linear algebra from the very 10th class. हम्म। And in AI, those are of utmost importance. Like even Python is easier than those stuff in AI. हाँ। So having a stable and perfect base in those two subjects is very, very important. हम्म। And in JE 2, in plus two, all the students will go through probability at very stronger level. या। So develop those basics because those are the हम्म। perfect basics that you need to be an AI engineer. या। डेफिनेट। And then understanding math. So math is very of utmost importance in AI. हम्म। So according to me, being strong in mathematics हम्म। is something that even a 10th class student or plus two student can start it from now. हम्म। And thinking about 10 to 15 years in future, actually, to be frank, only world has seen only generative AI till now, the chat हम्म। GPT, BART and all. But AI is having many branches like neurosymbolic AI, and even if quantum computing rises, the computational capabilities increases more, and we will be having much more branches of AI. And one point I wanna make sure, like students actually think either gate or placements. I mean, either gate or job. I mean, ओके। for preparing for the eighth semester and all, हम्म। they take it this way, either or. But I think both of them can be taken at a time, like हम्म। because we are having the time, we have to utilize it. बिल्कुल। लाइक ऐसा भी है ना कि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपने खुद ही पूछ ले, मैं पूछना चाह रहा था ये क्वेश्चन कि यार गेट वर्सेस प्लेसमेंट, ये स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा रहता है कि सर अगर मैं प्लेसमेंट में जाऊंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन गेट एग्जाम, और अगर मैं गेट में जाऊंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन प्लेसमेंट्स। तो इन दोनों को कैसे बैलेंस रखा जा सकता है, कैसे एक्चुअली में प्रिपरेशन की जा सकती है दोनों की? So we have to see the common points firstly, because हम्म। even in placements we'll be having data structures, and even in हम्म। gate we are having data structures. हम्म। And coming to these training technologies like ML and AI, they are always an add-on to your resume or in your gate exam. हम्म। So conquer the common points in the first place. हम्म। Then you can, like for example, we are having 1 year of time, and then say after 8 months you have to attend your placements, and after some 10 months or so you have to attend your gate exam. Then हम्म। first 8 months, like I mean first 6 or 5 months, concentrate on the common points. हम्म। And then when the time arrives, say in 1 month you are having your placements, give that 1 month to placements. And हम्म। then after that, after concluding of your placement seasons, like we'll be having a sessions like, I mean, there will be concentrated placement sessions, one हम्म। after the other. They so after completing those, focus 2 months on it. हम्म। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, क्योंकि थर्ड ईयर स्टूडेंट आर आल्सो एलिजिबल फॉर द गेट एग्जाम, तो आई Yes, थिंक yes, फ्रॉम द exactly. सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम पता है क्यों आती है? मेरे को लग रहा है कि प्रॉब्लम इसी वजह से आती है कि एकदम से थर्ड ईयर के बाद नाउ दे आर प्लानिंग कि मैं गेट में जाऊं या प्लेसमेंट में Yes, जाऊं। yes. इफ दे स्टार्टेड फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, फ्रॉम द थर्ड सेमेस्टर इटसेल्फ, कि यार मैं डेली बेसिस पे थोड़ा इसका, तो ऑब्वियसली इफ दे फोकस ऑन द कॉमन पॉइंट्स ओनली ना, जो आपने बताया कि कॉमन पॉइंट्स क्या है, जैसे अगर मैं गेट डी और प्लेसमेंट में कॉमन पॉइंट देखूं तो डेटाबेस, पाइथन, तो ये कॉमन पॉइंट्स ये तो चाहिए यार, ये तो Data प्लेसमेंट structures में भी भी है. चाहिए और यहाँ भी चाहिए। और अगर मैं गेट Yes. सीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो डेटा स्ट्रक्चर्स,
एल्गोरिदम, डीबीएमएस, सी, और वो वहां भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए। और अगर आप इन पॉइंट्स पे भी Exactly. फोकस कर लो तो यू विल एक्सेल इन द प्रोग्रामिंग ऑल्सो, यू विल एक्सेल इन द प्लेसमेंट्स ऑल्सो, एज वेल एज इन द गेट Yes, एग्जाम yes, ऑल्सो। और आप थर्ड ईयर में एक ट्राई कर सकते हो, आप थोड़ा थोड़ा अगर प्रिपरेशन yes, दे के देखो, exactly. थर्ड ईयर में अगर आप लाइक 40-45 तक आप अचीव कर लेते हो आउट ऑफ 100, तो यार फिर ऑब्वियसली आपको पता लग गया कि मैं गेट में नेक्स्ट ईयर और अच्छा भी कर सकता हूँ, है ना। ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो स्टूडेंट्स को फॉलो And करना चाहिए। coming to your point on that, actually, I got this 60 score. Like in CS, I got 60 score हाँ हाँ। and the 1000 rank, and I actually focused only on common points. ओ ग्रेट। तो So अगर I आप और actually फोकस prepared. करते, हाँ मींस आपने मेरे को लगता है 100% सिलेबस पे तो फोकस ही नहीं किया, बट स्टिल यू नहीं गॉट किया. 60। नो, दैट Yes, इज ऑल्सो exactly. ग्रेट ना। तो ये अपने आप में भी देखो एक सिंपल मतलब रियल लाइफ एग्जांपल है। स्टूडेंट्स एक्चुअल में Yes, हमेशा ढूंढते हैं, दे ऑलवेज सर्च फॉर कि यार रियल लाइफ एग्जांपल बताओ, तो यार ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। देखो कि ऐसा भी नहीं है कि 100% सिलेबस पे फोकस किया बट स्टिल 60 आउट ऑफ 100, ये तो अपने आप में यार एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि यार गेट सीएससी में भी। और मेरे को लगता है आपने आई थिंक 6 या 7 सब्जेक्ट्स पे फोकस किया होगा फिर इस हिसाब से तो। yes. So actually, the same engineering mathematics in CS paper is हाँ, very much concentrated into three subjects in DA. इंडिया, Aptitude I have to cover for both of them. So फॉर there बोथ ऑफ I देम, got 27 हाँ, marks. इवन फॉर And then प्लेसमेंट्स coming ऑल्सो। to data structure. Yes, yes. हाँ, And then coming to data structures and algorithms, we are having common. And या then database, we are having common. ये एक अच्छा पॉइंट निकल के आ रहा है। तो स्टूडेंट्स को आई थिंक एक अच्छा रोड मैप तैयार कर सकते हैं वो अपना। ऐसा नहीं है कि रादर देन दे कंफ्यूज्ड कि यार मैं इसके इधर जाऊं या इधर जाऊं, तो दे फोकस ऑन द कॉमन पॉइंट्स। तो लेटर ऑन उनको खुद से ही आई थिंक आइडिया आ जाएगा कि मेरे को किस डायरेक्शन Yes. में जाना है ना। उनको So फोकस they will करना find चाहिए their कॉमन interest. पॉइंट्स पे, हाँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जर्नी जो है वो एक ही तरफ जा रही है। लेटर ऑन डिवीजन हो जाएगा कि यार मेरे को वो Yes. खुद से ही डिसाइड कर सकते हैं, किसी और से पूछने की बजाय मेरे से पूछें या किसी और टीचर से पूछें कि मेरे को इधर जाना है। तो दे फोकस ऑन द कॉमन पॉइंट्स, उसको अच्छे से डीप से करें सारी चीजें। तो मेरे को लगता है इन फ्यूचर उनको खुद से ही पता लग जाएगा कि यार मैं, और हो सकता है वो आपकी तरह मल्टीपल अचीवमेंट ले लें कि इस 2 एग्जाम हाँ. में मतलब गेट डीए में भी चले गए, सीएससी में भी अचीवमेंट किया, और एज वेल एज प्लेसमेंट में भी उनको एक अच्छा जो है वो ऑफर मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा लगा श्रीनाथ, मेरे को बात करके आपके साथ बहुत अच्छा लगा। मेरा एक वैसे भी थोड़ा स्पेशल कनेक्शन है, बिकॉज पहले मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो वहां पे भी मेरा साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के साथ एक एक स्पेशल कनेक्शन था। बहुत अच्छा, क्योंकि अच्छा. स्टूडेंट्स वहां पे काफी थे फ्रॉम तेलंगाना, फ्रॉम एपी ऑल्सो। Oh, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो उनका मेरा एक तो मेरे से मतलब आपसे बात करके मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। तो मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छा सा स्टार्टअप इन फ्यूचर जो है वो लेके आओ। पहले एक अच्छी सी yes, yes. जॉब, अच्छा सा एक्सपीरियंस लो, एक्सपोजर लो, और फिर आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा करोगे यार, डेफिनेटली, क्योंकि आपने सारी चीजें प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर गाइडेंस से, क्योंकि आपसे बात करके ही पता लग रहा है कि आप कंफ्यूज नहीं हो किसी भी चीज में, क्लैरिटी है चीजों को लेके कि क्या चीजें मेरे को करनी है ना। ये क्लैरिटी, ये Yes, मेच्योरिटी yes. एक एक टाइम के बाद आती है, एक एज के बाद आती है। लेकिन इस टाइम पे Yes, yes, अगर आपके exactly. अंदर आई है तो आपने डेफिनेटली हार्डवर्क की है और कंसिस्टेंसी के साथ की है, जो कि मैं भी हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ, एसिड प्रॉपर्टी में जो सी है ना, कंसिस्टेंसी, उसको फॉलो करो। बहुत important है. तो हो सकता है कि हम मेरी बात पे ना फोकस करें, आपकी बात पे ज्यादा फोकस करें, तो अच्छी बात है, बट करना जरूरी है ना। Yes, ये yes. मेरे लिए एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो थैंक यू सो मच श्रीनाथ, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और स्टूडेंट्स के साथ जल्दी ही इस वीडियो को हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है। Yes, yes. और अगर इन Yes. केस और भी कोई चीज आई, और भी कोई दिमाग में कोई नए पॉइंट्स आई, तो फिर आप दोबारा से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो स्टे इन टच। Yes, 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 हाँ, exactly. Like, I am also very much thankful to you. Like, the videos that you make, and as we all say, we are having a university in YouTube, YouTube अरे वाह। University. Like, it is actually really helpful. Like I have mentioned earlier, now, हम्म, like 30 minutes of Instagram and all. We are having both of them. Like this generation is having both of them at a place. या, Say entertainment and studies, both at the phone. हम्म, So using it to the best is my motto. Like we have to use it well, but हम्म, don't go to distractions. That's it. बिल्कुल बिल्कुल। बस वही है ना, डिस्ट्रैक्शन पे थोड़ा ज्यादा चला जाता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन में जो है ना वो चीजें इस तरीके से डाली होती Distraction है, होते उसमें हैं. म्यूजिक इस तरीके का होता है, एडिटिंग इस तरीके Yes. की होती है। एजुकेशनल में क्या है कि डायरेक्ट बोल रहे हैं, अब देखो हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं आपस में, दिस इज अ ऑनेस्ट इंटरव्यू, हम बोलते हैं ना कि ऑनेस्ट, ऑथेंटिक।
Yes, ऑर्गेनिक yes, sir. प्योर, ये एक्चुअल में ऑर्गेनिक है, प्योर है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट को कब चाहिए होता है ये? वर्स्ट केस में, जब उनको लगता है कि अब डेड एंड आ गया, अब आगे क्या करना है पता नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों की कोशिश है कि यार हम लोग इस तरीके की कॉन्वर्जेशन उनके लिए पहले लेके आए, ताकि वो एडवांस में ही अपनी लाइफ में क्या करना है उसके लिए प्रिपेयर हो सके, है ना। Yes, yes, yes. हाँ, Thank you so much, sir. ठीक है श्रीनाथ, बहुत ही अच्छा लगा। जैसा आपका नेम है श्रीनाथ, का मतलब होता है लॉर्ड, लीडर, भगवान। तो आपने Yes, बिल्कुल वैसा ही लीडर की तरह डिटरमिन्ड होके ही आपने अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी अचीवमेंट ली है, जो कि लाइफ टाइम तक आपके साथ ही रहेगी। तो थैंक यू सो मच। yes. और आपने हमारे साथ जो है वो कनेक्ट किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी है, ठीक है। चलिए, Thank you. Yes, ठीक yes. है श्रीनाथ, बाय बाय, टेक केयर। Bye.